Yes. So as the name suggests, there is going to be something like अमोनिया, है ना? अमोनिया हमने ये देखा है? NH3. नहीं देखा। वेरी गुड बेटा, कंग्रेचुलेशन, हमने कुछ नहीं देखा है। तो ये जो अमाइन है, अमाइंस आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया। अभी माने क्या, अभी हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं कि अल्केन्स और अल्कीन्स के साथ जो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके हम लोग कंपाउंड बनाते हैं, दोज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो अमोनियम ग्रुप भी हमको पता है, अमाइंस, ये अमोनिया भी हमको पता है। अमोनियम इज NH4+, यू नो दिस राइट? Yes. अच्छा, एंड अमोनिया इज NH3, राइट? अभी ये NH3 में से एक, देयर इज लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन हैज अ टोटल ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल। Yes. सो आउट ऑफ दीज 5 इलेक्ट्रॉन्स 3 वो शेयर करता है, और 2 जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लोन पेयर की तरह उसके ऊपर रहता है। सो एक अगर हाइड्रोजन रिप्लेस करके मैं अल्काइल ग्रुप लगा दूं तो मुझे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाएगा। So let us see what are we talking about over here. What are we talking about over here? Like I said, I was talking, if you can see this, ये देखो बेटा, this is what I was talking about, ammonia, nitrogen के ऊपर lone pair and 3 hydrogen attached. Why? Because nitrogen has 5 electrons in the last shell. So out of those 5 electrons, 3 electrons are being shared with 3 hydrogen atoms, and the remaining 2 electrons are there as lone pair. Mane, they are not being included in any bond formation. Now out in this ammonia, if I remove one hydrogen and I add one alkyl group, एक हाइड्रोजन निकाल के एक अल्काइल ग्रुप बेटा मैं ऐड कर दूं तो RNH2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ये देख बेटा, एक हाइड्रोजन निकाल दे और एक अल्काइल ग्रुप लगा दे, है ना? Yes. So this is how I get my alkyl, which is R amines, NH2, simple as that. अच्छा, इसमें से अगर मैं H निकाल के अगर C6H5 लगा दूं, व्हाट इज C6H5? बेंजाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, ये हमने देखा था लास्ट ऑर्गेनिक चैप्टर के अंदर। Yes. Yes. तो again, so I can get alkyl or aryl amines by simply substituting one hydrogen from ammonia. सिंपल है, ये बेसिक लॉजिक क्लियर है कि हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अल्काइल अमाइंस और अराइल अमाइंस। सिंपल, ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूएंट्स इन अमोनिया ग्रुप, ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूएंट्स इन अमोनिया ग्रुप। ये लिख लो बेटा प्लीज। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू मेक नोट्स। आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हो ना तो गड़बड़ हो जाती है, फिर आप लोग को याद नहीं रहता है। I remember someone asking me a very basic question which I taught you and I told you to note it down, the order of क्या बोलते हैं stability in the group. तो आई रिमेम्बर मैंने लिखने के लिए बोला था, पर किसी ने मुझसे पूछा कि सर का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा। आई वाज लाइक कि see, if it is a very out of the syllabus or difficult question, I can understand you asking me, but when things have been taught, basic things have been taught, and at that time if you have doubt, so I was like कि वो notes एक बार refer तो करो बेटा। See, the thing is कि you should at least first try to find out the answer, then when you are not sure, you're not getting it from anywhere, then you should approach any of the teachers. We are always approachable. I'm not saying you cannot approach. I'm saying you should do a little efforts. Why am I asking you to do a little efforts? Because while doing so, na, you come across more new things which are good for you. वो ढूंढते ढूंढते ना हम लोग कुछ ऐसा नया एक कर लेते हैं जिससे क्या बोलते हैं हमको वो काम ही आता है। तो that is why research is important. Okay.
नाउ देखो, बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, अगर एक और हाइड्रोजन निकाल दिया तो R2NH हो जाएगा, और तीनों हाइड्रोजन निकाल दिया तो R3N हो जाएगा. So like you can see in front of you, if I replace one hydrogen atom, I get RNH2. What are these two dots representing over here above nitrogen? Lone pair. lone pair, अच्छा, आर्यन, लोन पेयर क्या होता है बेटा? नींद से जागो मेरे बच्चे. And guys, I'm going to take the lecture only till 8 today. I have to rush to office today, and this was a last minute call from office, so I told sir I'll take only for 1 hour, so please be attentive. So I better not ask you questions. Yeah, fine. So this lone pair is nothing but the pair of electrons on nitrogen which is not participating in any bond formation. Okay, अच्छा. तो आपको पता है इसको हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. हे Yes, sir. ये yes बेटा, sir, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन. ठीक है, इसको अमाइन बोलेंगे, इसको इमाइन बोलेंगे. इमाइन, IMINE. आपको याद होगा पिछले चैप्टर में इमाइन करके क्लिक क्या आया था, मैंने आपको बोलता कि ये सेकेंडरी के लिए. Yes. ये देखो, ऐसा ही अराइल अमाइंस में भी पॉसिबल है. तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे हम लोग अराइल ग्रुप से, बेंजाइल ग्रुप से, फिनाइल ग्रुप से, C6H5 से. ये देखो, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग. इफ यू रिप्लेस वन हाइड्रोजन एटम प्राइमरी, टू हाइड्रोजन एटम सेकेंडरी, थ्री, अगर तीनों हाइड्रोजन एटम अगर आप रिप्लेस कर रही हैं तो टर्शियरी अमाइंस. बेसिक क्लासिफिकेशन क्लियर है बेटा? Yes. एक अल्काइल ग्रुप Yes. अटैच होगी तो प्राइमरी अमाइन, दो अल्काइल ग्रुप अटैच होंगी तो सेकेंडरी अमाइन, तीन अल्काइल ग्रुप अटैच होंगी तो टर्शियरी अमाइन. हाँ जी, अभी if we talk about the geometry of this nitrogen atom, ये देखो बेटा, this is what I was saying, this is what I was talking about the nitrogen atom. It has 5 electrons in the outermost shell. एक, बे, त्रण, ये तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वो बॉन्डिंग के लिए इस्तेमाल करता है. 1 2 3, दिख रहा है सब लोग को ये लोब्स. और ये जो है इसके अंदर जो होता है वो अपना लोन पेयर होता है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है. ओके बच्चे, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकल के R लगा दिया, दूसरा हाइड्रोजन निकल के R लगा दिया, तीसरा हाइड्रोजन निकल के R लगा दिया तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइंस मिल जाएगा. नाउ दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज. आई होप everybody knows what is sp3 hybridization by now. बच्चों 11th में सीखा था हमने ये sp3 hybridization. Yes. Where 1s and 3p orbitals, they combine, they recast and reshape themselves to form 4 sp3 hybrid orbitals with tetrahedral geometry. Yes, sir. What is the bond angle for sp3 hybridization in general? 109 degree 28 minutes. अरे वाह 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 वाह, वेरी गुड अक्षय. So only Akshay is preparing nicely for the exams. बाकी सब तो चलो जो होगा देखा जाएगा. तानिका, उठो बेटा, जागो. ये देखो, 4sp3 में से 3 will overlap with either hydrogen or alkyl, and the fourth sp3 will contain the lone pair, the unshared electron pair. Simple. So that is why they will have pyramidal geometry. ठीक है, टेट्राहेड्रल ना होकर के पिरामिडल होगा. क्यों बेटा? बिकॉज देखो यहाँ पे लोन पेयर है एंड यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स है, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होगा, इसीलिए पिरामिड जैसा शेप हो जाएगा इसका. ये बेटा पिरामिड्स देखे आप लोग ने? Yes. You have been to Egypt बेटा? No, sir. You said yes right now.
गरीब माणूस. व्हाट अक्षय? गरीब सर माणूस. गरीब मानुष कहाँ से होगा? टीवी में तो देखा है ना, मैंने भी टीवी में देखा. मैंने हाँ कौन सा ये इजिप्ट जाना है? टीवी में. हाँ जी, वो गाना है ना शाहरुख खान और काजोल का, मैं चलने लगी जमीन ठहरने लगी, नहीं कुछ ऐसा गाना है, गाना नहीं क्या है. तो उसके अंदर बैकग्राउंड में पिरामिड जाता है. वैसे तो और बहुत सारे गानों में आता है. CNH और CNC बॉन्ड एंगल इज लेस देन 109.5 डिग्रीज. तो अपना भाई अक्षय क्या बोला था? 109.28 मिनट्स होता है, बट बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन इट वो उससे थोड़ा सा कम हो जाता है. ठीक है, ऑल्दो इट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उसका बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो जाता है. Yes. Akshay, it is absolutely fine if you do not say yes for every statement, because I really appreciate you letting me know that you are present, but I don't want you to take the burden of continuously unmuting and muting. Beta, I know you are paying attention, darling. Okay? Okay. Now see this. Abhi trimethyl amine. Look at this bond angle. Trimethyl matlab all the hydrogen atoms are replaced by methyl groups. Now, if you see the bond angle over here is seen as between these two groups is seen as 108 degrees. So again, depending upon the number of hydrogen atoms replaced by alkyl, amines will be classified into 3 types. एक कोणते टाइप्स आहेत? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. ये लिख लिया बेटा आप लोग ने? यू शुड बी वेरी मच अवेयर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस. आपको ना ये दूसरे चैप्टर्स में भी रिएक्शंस के तौर पे आया हुआ होगा. दैट बेटा, वेरी गुड. माने हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस बाय अल्काइल और अराइल ग्रुप. Primary, secondary, tertiary, respectively. Simple as that. Achha. They will be called as simple amines when all the alkyl or aryl groups are same. माने सब मिथाइल ग्रुप है, सब इथाइल ग्रुप है, सब क्या बोलते तो भी अपना प्रोपाइल ग्रुप है, ब्यूटाइल ग्रुप है. सेम ग्रुप्स अगर रहेंगे इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस. ए बेटा, प्राइमरी अमाइन में तो एक ही ग्रुप रहेगा, तो उसको तो वो तो सिंपल है ही, उसका तो कोई क्लासिफिकेशन है नहीं. बट सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस आर कॉल्ड एज सिंपल when both or all the 3 groups substituted are the same. माने तीनों मिथाइल है that way. Okay? Yes. But they will be called mixed amines when the alkyl groups substituted are different. Simple as that. Ata nomenclature of amines. Nomenclature of amines will be again into 2 types, aliphatic and aromatic. Aliphatic को पहले देखते हैं. IUPAC nomenclature. One is going to be your common system and other is going to be your IUPAC system. ठीक है, ये देखो कॉमन सिस्टम देखें. मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है अमोनिया के अंदर. अमोनिया का एक H निकाल देंगे तो वो ग्रुप का नाम क्या हो जाता है? अमाइन. मिथाइल इज अटैच्ड टू अमाइन, तो इट इज गोइंग टू बिकम मिथाइल अमाइन. हे बेटा, सो इजी. Yes. Yes. ये देखो मिथाइल अमाइन, कॉमन नेम है मिथाइल अमाइन. सेकेंडरी अमाइंस देखते हैं. बोथ आर सेम, देन प्रीफिक्स क्या हो जाएगा बेटा? डाई मिथाइल अमाइन. 2 है ना? Hey, the substitute groups are same. Methyl group is same. Yes, So sir. dimethylamine. हाँ बेटा बोलो. अच्छा. In tertiary amines, if they are same, तो try आ जाएगा. Simple as that. Simple. ये तो हम लोग को बचपन से पता है. ट्राइमिथाइल अमाइन तीनों सेम रहेगा तो ही अच्छा. जबरदस्ती मत ट्राई कर देना. मिक्स्ड में देखते हैं. The names of the alkyl groups, they are written in alphabetical order. ए बेटा,
अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है अनिरुद्ध? अक्षय अक्षय नायर, ABCD और क्या? ये और क्या बोलना जरूरी था बेटा? अच्छा, तो या इट इज द ABCD। क्या बोलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब ABCD। अभी मिथाइल और इथाइल अगर रहा तो E कम्स बिफोर M, तो इट इज गोइंग टू बी इथाइल मिथाइल अमाइन। ही Yes. Yes, sir. ये देखो, ये देखो, पहले वाले का तो मैंने आपको बता दिया, इथाइल मिथाइल अमाइन। ये जो दूसरा वाला टर्शरी अमाइन है, इसमें मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है। आप बताएं इसका नाम क्या हो जाएगा? पहले ई आता है, ई के बाद क्या आता है? इथाइल M. मिथाइल प्रोपाइल। एम। या ई के बाद एम आता है, एम के बाद पी आता है। तो इसके लिए आपको देखो बेटा, 12th में आ गए पर फिर भी ABCD ने पीछा नहीं छोड़ा, इसीलिए पिछली चीजों को भूलना नहीं चाहिए, सब याद रखो। इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमाइन, ये है इथाइल मिथाइल अमाइन, और ये हो जाएगा इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमाइन। कितने प्यारे नाम है देखो, सो इजी। बट वी विल लुक एट द IUPAC सिस्टम, ठीक है? अल्काइल प्लस अमाइन, alkyl amines are simply known as alkanamines। ये बड़ा alkanamines, अल्केन में से ई निकाल देने का और अमाइन डाल देने का। बच्चों, अल्केन में से ई निकाल देने का और अमाइन डाल देने का। तो कॉमन नेम में अल्काइल अमाइन है एंड IUPAC में अल्कानामाइन है। अल्कानामाइन, ये मैं प्राइमरी अमाइन की बात कर रहा हूँ। अल्काना अमाइन, अल्कानामाइन, ई निकाल के अमाइन डाल देने का। अरे Yes, sir. Yes, sir. ये देखो, ये एग्जांपल लिख लो, आप सारे इसी के दम पे कर पाओगे। मीथेन माइनस ई प्लस अमाइन इज इक्वल टू मीथेनामाइन। मेथेनामाइन। ये देखो सेकेंडरी अल्काइल आ गया बेटा। अब इसका क्या होगा? एन अल्काइल अल्कनामाइन। अच्छा, what is N representing over here? Obviously the nitrogen atom, and the alkyl groups are attached to the nitrogen atom. N alkyl alkanamine। अभी अल्केन किसको लोगे और अल्काइल किसको लोगे? एनी आइडिया बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस चैप्टर्स व्हिच वी हैव डन? सर जो पोजीशन रहेगा उसको हम अल्केन और जो ओवरऑल है उसको अल्काइल। नहीं समझा बेटा। जो छोटा ग्रुप रहेगा, देख बेटा, 2 R अटैच्ड है नाइट्रोजन पे, ठीक है? जो Yes. छोटा ग्रुप होगा वो अल्काइल हो जाएगा, और जो लॉन्ग बड़ा ग्रुप होगा वो अल्कानामाइन में अल्केन वाला नाम आ जाएगा। मतलब अगर यहाँ मिथाइल है और ये इथाइल है तो ये मिथाइल इथेनामाइन हो जाएगा। अगर ये मिथाइल है और ये प्रोपाइल है तो ये हो जाएगा मिथाइल प्रोपेनामाइन। समझे बेटा? सर समझा, हाँ। Yes, Yes. sir. एग्जाम्पल देखें, अब यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स है तो इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, तो ये क्या हो जाएगा? N मिथाइल मिथेनामाइन। सिंपल। लुक एट दिस, इसमें डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड है। सिंपल तो इजी पड़ता है, बट अगर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड है तो देखो, the alkyne group with less number of carbon atoms will be the substituent and the more number of carbon atoms will be the papa parent chain। N alkyl group, N methyl ethanamine। मेरे बच्चों समझ में आ रहा है? इजी है ना? Yes. Yes. लिख रहे हो ना बच्चों? Yes, sir. अच्छा, CH3 is substituent, N is going to be there by default and that's going to be the prefix sorry, N methyl ethanamine।
tertiary amines. If all the alkyl groups are same, then two alkyl groups are treated as side chain and one is treated as parent chain. तो अगर तीनों मिथाइल होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? N डाइमिथाइल मीथेनामाइन, है ना? Yes. N डाइमिथाइल मीथेनामाइन. अच्छा, यहाँ पे 2 बार N क्यों डाला? एनी आइडिया? तो 2 मिथाइल ग्रुप्स है ना अभी, 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है. तो substituent जैसे हम लोग करते हैं ना 1,2, 1,1, 2,3, यहाँ yes. पे हम लोग N, करेंगे. क्यों बेटा? क्योंकि here this compound is derived from ammonia. So we are not numbering the carbon chain, we are considering the nitrogen atom के साथ कौन फिक्स्ड है. इसीलिए नाइट्रोजन को हम लोग पोजीशन 1 दे करके 1 नंबर ना यूज करके उसका लेटर यूज करेंगे हम लोग N, कैपिटल N. N डाइमिथाइल मीथेनामाइन. Am I clear? देख बेटा, बाकी सब कंपाउंड जो हमने पढ़े ना, what are we doing over there? We are taking the corresponding alkane, we are removing hydrogen and we are attaching the functional group. यहाँ पे हम लोग उल्टा कर रहे हैं. यहाँ पे हम लोग inorganic compound ले रहे हैं, उसके अंदर alkyl group लगा रहे. Are you understanding? Yes. अक्षय नायर, हाँ सर. समझ रहे बेटा? हाँ. I hope you are paying attention to my video. Yes, yes. ओके. तो अभी अगर तीनों अलग अलग ग्रुप्स रहेगा तो क्या सीन होएगा बेटा? यहाँ पे तो अल्काइल ग्रुप विथ मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज द पेरेंट चेन. ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी नेम्ड एज अल्केनामाइन. तो यहाँ पे कौन सा अमाइन हो जाएगा बताओ बेटा? जस्ट टेल मी द पेरेंट नेम. Propanamine. Very good. Propanamine. Because the more number of carbon atoms C3 का है तो प्रोपेनामाइन is going to be the parent. और ये दो N, क्या हो जाएगा? Substituent. Substituent. अच्छा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में M पहले आता है कि E? M. E. अच्छा, E पहले आता है. ठीक है, E. तो इकरा का नाम क्या हो जाए रे? N ethyl, N methyl, Methyl propanamine. propane to amine. प्रोपेन 2 अमाइन. N methyl, N ethyl, N methyl propanamine. बच्चों बेटा यहाँ पे एवरीथिंग इज अटैच्ड टू N. नहीं बेटा, इट इज अटैच्ड टू N ना? Yes. है ना? That Yes. propyl group is attached to N. That methyl and ethyl group is also attached to N. So here N को हमने क्या किया है? N के हाइड्रोजन्स को अमोनिया के हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके अल्काइल ग्रुप लगाया बेटा. इसीलिए मैं उसको 1, 2, 3 कार्बन चेन के हिसाब से नहीं, बट एज रेफरेंस इज द नाइट्रोजन, सेंट्रल नाइट्रोजन एटम. अक्षय, am I clear बेटा? Yes, sir. Yes. ओके. हाय, चलें. अब क्या होगा? Look at this. This is NH2 and the alkyl group is attached in this way. What is the total number of carbon atoms that you can see in the alkyl group? 1, 2, 3, 4, 5. 5, right? So pentyl group is attached, but it is attached. This ammonia is attached to the second carbon of the pentyl group. ठीक है? Now I will number the carbon atoms. In such a way such that the carbon having the ammonia group gets the least number. तो अगर मैंने यहां से नंबर किया तो मुझे क्या मिला? 1, 2, 3, 4, 5. सेकेंड पोजीशन पे आई एम गेटिंग द अमाइन ग्रुप. व्हाट इफ आई नंबर फ्रॉम द फिफ्थ कार्बन? 1, 2, 3, 4, 5. फोर्थ पोजीशन पे आएगा. सो विच इज करेक्ट? जो आपको दिख रहा है वो, कि जो सेकंड वाला ऑप्शन हमने चूज किया वो? ये नहीं वाला. sir, ये वाला करेक्ट है. करेक्ट. सेकंड.
ये देखो, इसका नाम क्या हो जाएगा? एनीबॉडी? पेंटेन टू अमाइन। Pentane. पेंटेन टू अमाइन। अब आ गया ये पेंटेन टू अमाइन। डिड यू अंडरस्टैंड अक्षय? अब कहाँ पे यूज करना है हम लोग को 2 and 3 and 4? यस सर। अच्छा, others, Sharon and Akshay Nair, you three are the Yes, only one sir. I'm interacting with, that's why I'm taking your name. Yes, मेरे को sir. पता था। हाँ, तुम्हें सब पता है बेटा। तुम्हें तो पेपर भी क्या आने वाला है वो पता है। कल है। Everybody, Akshay stays in Kalyan and you can barge into his house. Okay, so pentane to amine, ठीक है, because it is pentanamine ना, तो second position पे amine group है, इसलिए pentane to amine. Let us try to name the other compounds now. Ooh, look at this beautiful compound in the morning. If you see, there are 3 alkyl groups attached to this nitrogen atom. ठीक है, एक मिथाइल है, एक इथाइल है और एक पेंटाइल है। मुझे तो ये दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है? Yes. नहीं दिख रहा है। देख बेटा, ये मिथाइल है, ये इथाइल है और ये पेंटाइल है, बट पेंटाइल का फर्स्ट कार्बन नहीं, सेकंड कार्बन है। अगर ये दोनों नहीं होता तो इसका नाम वही होता जो पहले वाले लिया अपन ने, सर पेंटान टू हाँ, अमाइन हाँ। होता है ना? बट इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स है। पेरेंट अल्केन पेंटेन हो जाएगा, 5 कार्बन एटम्स। सेकेंड कार्बन एटम में है तो क्या हो जाएगा? पेंटान टू अमाइन। मैंने वही बोला, ठीक है बेटा, जो पहले वाला नाम था। साइड चेन्स आर अटैच्ड टू नाइट्रोजन, एन इथाइल एंड एन मिथाइल Methyl. in alphabetical order. N-ethyl, N-methyl, pentane to amine. हे कळाला का रे बाळांनो? यस Yes. सर। Yes, sir. बाकी के बाळांनो, apart from these 3, Yes. दर्शना को भी yes, योगेश को भी yes, प्रवीण को भी yes. प्रवीण ने मतलब तुरंत म्यूट अनम्यूट करके म्यूट कर दिया, तो उसका yes भी मेरे को हवा की तरह सुनाई दिया। कोई बात नहीं बेटा। अवंतिका समझ में आ रहा है? अश्वती, अनिरुद्ध, आर्यन, जॉसलिन, केदार, मानस, तानिका, Yes, sir. पीयूष, आदित्य, सरोज, पूनम, श्रेया, सुबोध। अरे तन्मय, तू सोने के लिए ज्वाइन होता है कह रहे? तेजस, योग्या, प्रतीक, गुड। यस। एन मिथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल, काय को इसके आसपास चीजें घूम रही हैं, तो जो सब्स्टिट्यूएंट इसको अटैच्ड है उसका नंबर नहीं होगा, उसका कैपिटल एन होगा। एंड बाकी पेरेंट का सेकंड कार्बन एटम इसको अटैच था, इसीलिए पेंटान टू अमाइन। नाउ आई हैव अ डबल बॉन्ड इन द कार्बन चेन। अब क्या होगा बेटा? अब तो ये अमाइन नहीं है, ये अमाइन है अभी भी। सोच में पड़ गए। अरे भाई ये दिख रहा है, ये NH2, जहां ये NH2 दिख रहा है, जहां ये NH2 दिखेगा ना, वो अमाइन होता है, ठीक है? But if functional group and multiple bonds are present, then numbering should be done in such a way that the carbon get bearing the functional group should get the least number. प्रोपेन 2 इन 1 अमाइन। अरे वाह वाह। बट नंबर किसको कम मिलना चाहिए? नाइट्रोजन वाली आइटम को, हमेशा याद रखियो, क्योंकि वो मेरा सबसे ये है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना? क्या बोला अक्षय ने? क्या बोला अक्षय ने? क्या बोला? सर प्रोपेन 2 इन 1 अमाइन। प्रोपेन टू प्रोपेन इन, आएगा। 2 प्रो इन। प्रोप 2 इन 1 अमाइन, ऐसा बोल रहे बेटा? यस। अच्छा,
बिकॉज बच्चे हमको डबल बॉन्ड का पोजीशन एज वेल एज फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे। प्रायोरिटी देखो, फंक्शनल ग्रुप इज प्रायर टू डबल बॉन्ड। prop 2E1 amine, prop it is propene because of double bond, तो prop सेकेंड पोजीशन पे, सेकेंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है इसलिए 2। एन होता अगर ये अल्केन होता, बट ये अल्कीन है इसलिए EN, जिसके फर्स्ट कार्बन एटम पे अमाइन ग्रुप अटैच्ड है 1 अमाइन। prop 2E1 amine, am I clear guys? Yes. Yes, sir. नायर, नायर को सब पता है। Yes. Nair is going to top the board. Ooh, 2 amino groups. चलो, Akshay, don't say, huh? Hold on. I want someone else to try this. बेटा गलत तो गलत है. I'm not judging you over here. At least try. That is what I'm asking. Akshay, शिंदे नहीं बोलेगा. बाकी के, if you want to try, you can try and say. ये बेटा, two-way studies is good, ना? Pentane 1,2-diamine. Pentane 1,2-diamine. Akshay, what is your answer? 3. 2,3 होगा, pentane 2,3 diamine. Sorry, wait, Pentane 2, 3, 2,3 sorry. diamine. Sharon, what is your answer, beta? Pentane 2,3 diamine. Pentane 2,3 diamine. Let us see what is the answer. We have more than one amino groups at different carbon chains. Acha. Numbering should be done in such a way such that the sum of the क्या बोलते numbering should be the least. 2 अभी देखो यहां से नंबर किया तो 2,3 मिलता है और यहां से नंबर किया तो 3,4 मिलता है। 2 + 3 क्या है 5, 4 + 3 क्या है 7, तो ये ज्यादा हो रहा है इसलिए मुझे यहां से नंबर करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। Sum of the locants should be the least. 2 amino groups, तो प्रीफिक्स क्या हो जाएगा डाई, जहां भी 2 दिखा वहां पे मर जाने का डाई। ठीक है, पेंटेन 2,3 diamine. The letter E of the hydrocarbon part is retained here as it is followed by a consonant. What is a consonant? ठीक है, ये डाई ट्राई अमाइंस में हम लोग जो पिछले अल्केन का ई निकाल दे रहे थे यहाँ पे वो अल्केन का ई हम लोग रखेंगे। ठीक है बेटा, जब 2 फंक्शनल ग्रुप्स आ जाएगा सेम 2 अमीनो ग्रुप्स 3 अमीनो ग्रुप्स नहीं। Sir. लिख लिया? Yes, sir. ये देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन 1,6 डायमाइन। आता आपण बघूया नोमेनक्लेचर ऑफ, क्या बोल रहे बेटा? लिखें। डन सर। ओके बेटा, ये देखो अमाइन ग्रुप इज NH2, अरीन, अरीन बोले तो अपना अराइल, अपना फिनाइल, अपना अरोमेटिक ग्रुप which is there. IUPAC system, suffix E of arene is replaced by amine, arenamine. ये बेटा arene is this क्या बोलते हैं ग्रुप, दिस ग्रुप कौन सा ग्रुप है ये? एरोमेटिक ग्रुप। Yes. तो ये इनको, इसका दूसरा नाम भी हम लोग कॉमन नेम क्या बोलते हैं, जैसे अपन लोग अल्काइल्स बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग अरीन या फिर अराइल बोलेंगे। Yes. यहाँ पे अरीन नाम क्यों आ रहा है, किसी को आइडिया है कुछ? अरीन
ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है ना? yes, इट इज ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड. डबल बॉन्ड मतलब अल्कीन जैसा हो जाता है ना, तो इसलिए ई ए नहीं आता है. तो अरीन, अरीन का ई निकाल करके उसमें अमाइन डाल देने का, अरीन अमाइन. बेंजीन माइनस ई प्लस अमाइन इज बेंजेनमाइन. कॉमन नेम इज एनालीन. पढ़ा रहेगा ये आप लोग ने, yes, Yes. ठीक है. बेंजीन माइनस ई प्लस अमाइन इज बेंजेनमाइन. यहाँ पे कॉमन नेम इज गोइंग टू बी एनिलीन. एनिलीन को हम लोग बेंजेनामाइन भी बोलते हैं बेटा. हे, अगर सब्स्टिट्यूएंट्स रहेगा तो व्हाट वी विल डू, हाउ विल वी नंबर? वी विल नंबर इन सच अ वे दैट द फंक्शनल ग्रुप गेट्स द लीस्ट नंबर. माने जहां पे NH2 NH या NH N अटैच्ड है उसको नंबर 1 देंगे, बाकी के ग्रुप्स को फिर लोअर नंबर आना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे वी विल नंबर इट क्लॉकवाइज. 1 2 पे इथाइल, 3 4 4 पे ब्रोमो, 5 and 6. वुड यू लाइक टू ट्राई टू नेम दिस कंपाउंड? 4 bromo, 2 ethyl, benzenamine. 4 Bromo, ब्रोमो, अल्फाबेटिकली ब्रोमो बी पहले आता है, Two- करेक्ट. 4 two ब्रोमो, ethyl. 2 इथाइल, benzenamine. बेंजेनामाइन. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. अल्फाबेटिकल ऑर्डर. 4 ब्रोमो, 2 इथाइल, बेंजीन अमाइन, बेंजेन अमाइन. वेरी गुड. लिख लिया? Yes, H. और ब्रोमो, 2 इथाइल, बेंजेनामाइन. hello sir, कौन बोला? sir अक्षय. हाँ बेटा बोला. सर क्लास में थर्मोडायनेमिक का एंट्रेंस भी हो गया? नहीं, अभी सिर्फ मैंने थियरी पढ़ाया उसका. ओके सर. थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा के हो गया तुम लोग का? नो सर. डोंट वरी, वी विल टीच यू बेटा. बेचारे. क्या बोल रहे बेटा? अक्षय डोंट वरी, हाँ, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड. एंड तुम तो मेरे घर के बगल में ही हो, मैं आके पढ़ा दूंगा तुमको, ठीक है ना? चलो ये एग्जांपल्स को ट्राई टू नेम देम. ब्यूटीफुल नेम्स, लुक एट दैट. वाओ. Done? I'm assuming you all are doing this, huh? Yes sir. चलो फर्स्ट में देखें. 2 methyl groups are present as a side chain on the N atom and the main compound is aniline. ए बेटा, see this is the basic rule. N को देखो, N के साथ क्या अटैच्ड है? एक बेंजाइल ग्रुप अटैच्ड है, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है. लॉन्गेस्ट चेन कौन सा दिख रहा है? ऑब्वियसली बेंजाइल ग्रुप दिख रहा है, बेंजीन दिख रहा है ना?
because 6 carbon atoms, although it is a closed chain compound, aromatic compound, doesn't matter, right? तो यहाँ पे 2 methyl group है N के साथ, and the parent is benzanamine और aniline. इस कंपाउंड को क्या हम लोग बोलेंगे? NN डाइमिथाइल एनिलीन और बेंजेनामाइन. NN डाइमिथाइल बेंजेनामाइन और फिर या फिर एनिलीन, राइट? Yes. सर Yes. डायरेक्ट डायमिथाइल बेंजेनामाइन लिखा तो नहीं चलेगा, एन एन नहीं लिखना बेटा, कंपलसरी है. अपने को N जैसे हम लोग जहाँ पे सब्स्टिट्यूट अटैच्ड है वो पोजीशन मेंशन करना जरूरी होता है बेटा IUPAC में, यस. ठीक है ना? तो इसीलिए अब यहाँ पे कहाँ पे सब्स्टिट्यूट अटैच्ड है? नाइट्रोजन एटम पे. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था यहाँ पे नाइट्रोजन को सेंटर रखना है हमने, ठीक है? यस सर. ओके दर्शना? यस सर. अच्छा बेटा. सेकेंड बताएं. NH2 यहाँ पे बेंजीन रिंग को अटैच नहीं है, इट इज अटैच टू 1 2 3 4 ब्यूटाइल को अटैच्ड है. बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट एज साइड चेन. तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4. सेकेंड पोजीशन पे बेंजीन इज अ साइड चेन. 2 फिनाइल ब्यूटेन 1 अमाइन. ये कितने लोग को करेक्ट आया, मतलब समझ में आया? लिखे अपने आप. यू कैन राइट एज बेंजाइल, यू कैन राइट एज फिनाइल, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. नहीं, Yes, sir. Sir, phenyl common name में आएगा क्या IUPAC में? both are considered, phenyl as well as benzyl, दोनों are considered IUPAC. IUPAC is one confusing soul, उसको खुद ही नहीं पता क्या लेना है क्या नहीं, ठीक है ना? Yes. Sir, aniline भी IUPAC में आएगा. क्या बोल रहे हो बेटा? Sir, aniline अगर लिखा तो वो तो common हो जाएगा ना, common name. वो कॉमन हो जाएगा, वो कॉमन हो जाएगा. तो 2 फिनाइल ब्यूटेन 1 अमाइन, ठीक है बच्चों? Yes. ए नायर, Yes. तुमने गंदरू. चल थर्ड वाला नाम बता बेटा. अमाइन ग्रुप जहां पे बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा वो एनिलीन हो जाएगा, वो बेंजीन अमाइन हो जाएगा, पेरेंट. अल्काइल ग्रुप 2 है, मिथाइल और इथाइल. अब इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर करना है. एन इथाइल, एन मिथाइल, एनिलीन, ब्यूटेन. एनिलामाइन. ब्यूटेन कहाँ? ब्यूटेन है बेटा. एन इथाइल, एन मिथाइल, एनिलीन या फिर बेंजेनामाइन. एनिलीन की जगह हम लोग बेंजेनामाइन भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा बच्चों. Yes. आर वी राइटिंग बोथ द ऑप्शंस और यू आर स्टिल हाफ asleep? अक्षय बोलेगा आई एम फुल asleep. तुम लोग का रोज 7 बजे लेक्चर होता है कि सिर्फ मेरा ही लेक्चर 7 बजे होता है? Sir, रोज होता है. रोज. अरे सागर पवार डॉक्टर साहेब तुम्ही आले, तुमचा आवाज येत नाही डॉक्टर साहेब. नाही, तुम्ही अनम्यूट केलं ते मला दिसतंय पण तुमचा आवाज आम्हाला येत नाही डॉक्टर. असं कसं व्हायचं? पेशंटला तुम्ही कॉलवर घेतला आणि तुमचा आवाज येणार नाही, तो पेशंट तर मरेन. किसी को सागर का आवाज आ रहा है? मुझे नहीं आ रहा है. No, sir. अच्छा. एन इथाइल, एन मिथाइल, एनिलीन. एनिलीन की जगह हम लोग बेंजेनामाइन भी लिख सकते हैं. चल भाई, फोर्थ स्ट्रक्चर आ गया. फोर्थ स्ट्रक्चर बताएं, इसका नाम तो बता दो कोई. 1,4 ethyl diamine. 4 बेटा? 2 ना. बट इथाइल मतलब नहीं, मेरे को नहीं समझा यहाँ पे आपने क्या किया. 1,2
या फिर इथेन 1,2 डायमाइन, ऐसा कुछ होना चाहिए ना। इथेन 1,2 डायमाइन है ना बेटा। 2 कार्बन आइटम है तो इथेन हो गया। 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है इसलिए ई को मुझे रखना है। कहां पे है? पोजीशन 1 और 2 पे। क्या है? 2 है। क्या 2 है? अमाइन। इथेन 1,2 डायमाइन। सर दो सब्स्टिट्यूएंट सेम रहेंगे तब भी इको रखने की, अलग रहेंगे तो भी तो। नहीं, 2 या 2 से ज्यादा सेम सब्स्टिट्यूट रहेंगे, मतलब फंक्शनल ग्रुप रहेंगे, तब अपने को ई को रखना है। अगर एक ही रहेगा तो ई को निकाल देना। ठीक है प्रवीण। यस सर। गाइस ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अच्छा। Let us see the preparation methods of amines. Amines को बनाने के तरीके, laboratory method, reduction of nitro compounds. Nitro compounds मतलब NO2 group attached to alkyl ring. तो NO2 group attached to alkyl ring, removal of oxygen and addition of hydrogen is known as प्रोडक्शन। रिडक्शन। तो NO2 में से O2 निकाल करके H2 वहां पे डाल देंगे तो रिडक्शन हो जाएगा बेटा। सो सिंपल लेबोरेटरी में, लैब में, स्मॉल स्केल पे, छोटे लेवल पे हम लोग कैसे अमाइंस को बनाएंगे? वी विल रिड्यूस द नाइट्रो अल्केन कंपाउंड्स को रिड्यूस। रिडक्शन मींस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। NO2 में से O2 निकालेंगे ने H2 ऐड करेंगे। ये देखो, दिस एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम लोग? NO2 को निकाल के पूरा NH2 रिप्लेस कर रहे हैं। ये देखो, वी आर यूजिंग हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ D ब्लॉक के कैटलिस्ट निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम। कैटलिस्ट क्या कर रहा है? एड्सॉर्ब करेगा और रिएक्शन को फास्ट करने की क्षमता देगा। लिख लिया? नहीं लिखा? डन सर। देन Well, sir. ओके बेटा, either using this or by using active metals like again D block elements, iron, tin, zinc in the presence of concentrated HCl. ए बेटा, जब हम लोग हाइड्रोजन यूज कर रहे थे फॉर रिडक्शन, तब हमने कैटलिस्ट क्या यूज किया था? निकल, आप लोग ने लिखा है ना, बोलो। पैलेडियम, प्लैटिनम। Yes. And when we are using concentrated HCl for reduction, that time catalyst क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? आयरन, जिंक। Zinc. हाँ। Tin. Any logic over here? When acid is reacted with a strong metal, hydrogen is released, and this hydrogen will be used for reduction. Simple as that. है ना बेटा? यस। अरे, यस सर। iron will react with acid to release H2. ये देखो, nascent hydrogen is produced by the action of metal on acid. This is going to reduce the nitro compound. Did you see that beautiful video? See this. Active metals are going to react with acid to produce free hydrogen. ये देख, फ्री हाइड्रोजन निकला एसिड में से। ये फ्री हाइड्रोजन जाकर के नाइट्रो कंपाउंड में से ऑक्सीजन को निकाल करके खुद ऐड हो जाएगा, उसका रिडक्शन करेगा। ऐसे देखा तुम लोग ने? यस। Both aliphatic and aromatic primary amines are prepared by this formula.
Nitroethane is converted to ethanamine by catalytic reduction, and nitroethane gives ethanamine. देख बेटा, यहाँ पे ऊपर वाला is these nickel, platinum and palladium. They are used as catalysts for adding hydrogen. यहाँ पे tin and iron are being reacted with HCl, not as catalyst. They are used to produce this nascent hydrogen, which is added over here, and water molecule is eliminated. So the upper one is catalytic reduction, the lower one is normal reduction. समझना बच्चों, समझना है, सर ठीक है। मैं आपको ये इसलिए गौर फरमाने के लिए कह रहा हूं कि अगर आपको एग्जाम में ऐसा थोड़ी पूछेंगे, आपको एग्जाम में एरो के ऊपर अगर ये लिख के दिया तो यहाँ पे वाटर मत ऐड करना, और अगर ये लिखा है तो वाटर ऐड करना। समझ रहे हो? यस लिख लिया? सर ओके बेटा। ये देखो, कैन समवन टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट ओवर हियर? नाइट्रोबेंजीन ऊपर और नीचे दोनों का आप गैस करके मुझे बताओ कि क्या होगा? कैटालिटिक रिडक्शन एंड Aniline. नॉर्मल। एनिलीन बनेगा, एनिलीन ऊपर बनेगा, नीचे क्या बनेगा? H2O, ओनली 2H2O, H2O, 2 2H. ओनली 2H2O, एनिलीन नहीं बनेगा नीचे। Aniline भी नहीं बनेगा। अरे aniline बनेगा। एनिलीन और बाय प्रोडक्ट H2। नहीं तो कौन बोलेगा वो पूरा? अक्षय नायर, यू डू नॉट ईट थिंग्स, यू आर हंग्री, यू ईट फूड। आई विल ट्रीट यू विद अ वड़ा पाव। बोलते हो आपसे 12th के बाद मिल खिलाता बेटा, ठीक है ना? अरे भाई ये देखो क्या हो गया, ऊपर भी H2O नीचे भी H2O, क्यों? इससे क्या क्या बोल रहे हो बेटा? ऊपर प्रेजेंस में दिया है ये ना, देखो। और नीचे ऐड किया है। Fe plus HCl is preferred plus HCl. Iron scrap is readily available. क्या बोल रहे हो बेटा? Iron scrap is used easily available and cheap as compared to tin. Also, ये देखो, ferrous chloride जो मिलता है हमको बाय प्रोडक्ट में, it undergoes hydrolysis and produces hydrochloric acid again, जिसको मैं रिसाइकल यूज कर सकता हूँ, ठीक है? तो थोड़ा ही HCl लगता है इसमें। गाइस समझाओ क्या बोला था मैंने? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन था थोड़ा। Why we are using, why we are preferring Fe plus 2 HCl instead of Sn plus 2 HCl. Fe plus 2 HCl will give me FeCl2 जो बनता है, that undergoes hydrolysis to give me 2 HCl again, which can be reutilized. तो इसीलिए स्टार्टिंग में मुझे कम HCl यूज करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ से मुझे any which ways और HCl इसमें ऐड करके मिल जाएगा, ठीक है? तो कम यूज करना पड़ेगा, मतलब सस्ता पड़ेगा ना बेटा, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। नहीं यस सर समझा। Amines can also be prepared by ammonolysis of alkyl halides. ये halide वाले चैप्टर में आपने रिएक्शन में देखा होगा, नहीं देखा है? ये बेटा halogen derivatives of alkanes वाले चैप्टर में this reaction would have come under chemical reactions of Yes, alkyl sir. halides. Yes or no?
Yes. It is the same, exact same reaction. Ammonolysis of alkyl halides. Ammonolysis मतलब अमोनिया ग्रुप का एडिशन. Simple as that. Amine ग्रुप का एडिशन. ये देखो. It can be done for both alkyl और benzyl halides. न्यूक्लियोफाइल अमोनिया जाता है, बॉन्ड तोड़ता. This is ammonolysis. Lysis means breaking. Ammonia is breaking the bond with halogen and attaching itself. ये NH2 यहाँ पे लग जाएगा और HX अलग निकल जाएगा. मिनरल एसिड भी मिलेगा. Yes or no? Yes. अच्छा, why am I calling ammonia group as a nucleophile? Because it has lone pair, it can donate electrons. It can give electrons. It wants positive charge to come. उसके ऊपर excess negative charge है. Yes. है ना? Who discovered this ammonolysis of alkyl or benzyl halides? This gentleman, Hoffman. नाम सुना है? And degradation. आज चेहरा देख लो. चला नहीं. ये देखो, Hoffman's synthesis. Alcoholic solution of ammonia and alkyl or benzyl halide is used. It is heated at 373 Kelvin. Chloroethane plus alcohol solution plus ammonia. They are heated in a sealed tube. What do I get? I get ये देखो, एथेनामाइन प्लस HCl है ना. पहले अमोनिया पूरा ऐड होगा बिकॉज वो अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक. फिर ये कॉम्प्लेक्स बनेगा. फिर क्या होगा? NH2 रुक जाएगा, HCl साइड में निकल जाएगा. बेटा Yes, sir. है ना. लिख लिया. इथेनामाइन के साथ क्या मिलेगा मुझे? एन इथाइल इथेनामाइन सेकेंडरी. ये इथेनामाइन को मैंने फर्दर ट्रीट किया तो ये मिलेगा ना, सेकेंडरी मिलेगा. इसको फर्दर ट्रीट किया तो क्या मिलेगा? एन डाइमिथाइल इथेनामाइन, डाइल इथाइल, है ना. Yes. और इसको फर्दर ट्रीट किया तो क्या मिलेगा? टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड, सॉल्ट, क्वाटरनरी सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स. दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये आप लोग ने पढ़ा रहेगा SN1 SN2 में. Sir. This primary amine thus obtained will be acting as a nucleophile to form secondary and tertiary amine head. And last में I'll get a quaternary ammonium salt. ये general reaction लिख लो बेटा, arrow के साथ बनाना. ठीक है? Can we stop here guys for today? No? Yes. Yes, sir. ठीक है बच्चों, I have to rush to office. At the office is in BKC and the trains are crowded. So we will meet soon and continue this chapter. Okay बच्चों? Yes.
आई होप Yes. ये इतना जितना आज के क्लासिफिकेशन एंड सम प्रिपरेशंस वो समझ में आया आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अच्छा ठीक है, चलो आई विल सी यू गाइस, बाय बाय। माधुरी मैडम, प्रतिभा मैडम, सब सो रहे। हेलो, जीनियस एकेडमी 1 2 3, हेलो हेलो, माइक चेक। माधुरी मैडम, प्रतिभा मैडम, guys, you can leave, guys. You can log out. If you are listening to me, you can log out, guys. Go start studying. Madam will see that no one is there and she will stop the lecture. No problem. She must be busy.